कछुए के बारे में आज मैं कुछ अजीब चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, सुनी भी नहीं होगी। लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। Turning the Tide by Karthik Shankar. Imagine yourself on a beach in Odisha in winter. Moonlight glistens and is reflected not off the sand or water, but off the wet backs of 1,000 turtles. Each olive ridley, 2 feet long and weighing about 50 kilograms, has dragged itself up the beach to dig a nest and lay eggs, as all sea turtles do. Unlike other sea turtles, though, ridleys take part in an annual ritual known as the Arribada, which means arrival in Spanish. Tens of thousands come to the shore at the same time to lay their eggs. This amazing natural phenomenon may disappear one day, unless we are able to do something about the hazards that threaten these turtles' existence. Sea turtles are magical animals, all the more mystifying because of our ignorance about them. They appear but briefly on land to lay their eggs and spend the rest of their lives wandering the oceans. When newly hatched, they drift with oceanic currents, sometimes traveling the entire Pacific or Atlantic. When they become adults, 10 to 15 years later, or sometimes 50, they use the Earth's magnetic field to find and lay their eggs on the same beach where they were born. They have done this for millions of years. But today, sea turtles are threatened by human activity. This includes the increasing pollution of the oceans. Electric lights on beaches confuse and disorient hatchlings and prevent them from finding the ocean after they hatch. Fishing nets have killed hundreds of thousands of turtles worldwide. Sea turtles are air breathers, and when they get accidentally caught in fishing nets, they drown. In Odisha, thousands of olive ridleys are killed each year in nets, which also destroy marine ecosystems. This also affects the livelihoods of traditional fishing communities. Current efforts to create an alliance between fishermen and conservationists seem to offer some hope. I saw my first olive ridley turtle one moonlit night in Chennai. We had just started a student group to conserve turtles. We watched the female turtle come ashore, crawl up to a dry part of the beach, dig a 2 feet deep nest with her hind flippers, and lay 100 to 150 eggs. The hatchlings would emerge about 2 months later, and under the cover of darkness, make a swift dash for the sea, which they locate by the reflection of moonlight and starlight on the water. Now, nearly 20 years later, some of those hatchlings have hopefully reached adulthood. The group with which I saw my first olive ridley is still active. There are now many more conservation organizations around India which work for the conservation of these fascinating marine creatures. All this and more effort will be required to counter new threats on the horizon. In Odisha, new ports have been built along the coast, and several more are planned. These will destroy many mass nesting beaches. Offshore oil exploration poses another threat. This coastal development, with attendant problems of pollution, lighting, and habitat loss due to changes in beach dynamics, could cause even further declines in the populations. Not only will sea turtles and other marine organisms suffer, but so will the people
who depend on marine resources for their livelihoods. Often, such development does not help local people as much as it is expected to do. Thanks to conservation efforts and their innate resilience, olive ridley turtles in Odisha are doing well. More turtles nest during mass nesting events at Rushikulia than they ever have since this beach was discovered 25 years ago. There is reason for hope, but sea turtles are only one of many, many species that are threatened by human activity, and they too could be permanently affected by climate change and coastal development. Will they survive into the next century with healthy marine ecosystems to live in? That depends on us. If you live near the coast, find out which species of sea turtle nests on those beaches and join in efforts to save them and their habitats. They need all the help they can get. टर्निंग द टाइड्स का आपने अभी तक इंग्लिश एनिमेशन तो देख लिया है, चलिए हिंदी भी देख लेते हैं। लाइक तो कर दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, टर्निंग द टाइड्स बाय कार्तिक शंकर इस लेखक ने इसे लिखा है। तो ये क्या है? ये कछुए की कहानी है। कछुए कैसे जन्म देता है, कहाँ पे जन्म देता है, उड़ीसा में क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो आप उड़ीसा के बीच पर एक ठंडी के दिनों में अगर जाके हैं और वहाँ पे आप जब जाओगे तो मून लाइट के टाइम में जब रिफ्लेक्शन अच्छे से वहाँ पे गिरेगा मून का गिरेगा, तब आप देखोगे कि हज़ारों कछुए जो है, ऑलिवर रिडली जो उनका टाइप है, वो 2 फीट लॉन्ग मतलब 2 फीट लॉन्ग रहते हैं। नियरली 50 किलो उनका वेट रहता है और नियरली 1000 कछुए एक ही साथ आपको समुद्र में से बाहर निकलते हुए दिखेंगे। ये सारे के सारे फीमेल कछुए आपको दिखेंगे और ये अपने बॉडी को रेंगते हुए पूरे सैंड के ऊपर से आएंगे और अपने जो विंग्स है उससे नियरली 2 फीट ज़मीन को सैंड को बाजू में करके नियरली एक फीमेल कछुआ जो है नियरली 100 नहीं तो 150 अंडे दे के वहाँ से चले जाते हैं। और ये सभी एक साथ हज़ारों कछुए जो है, फीमेल कछुए एक साथ एक ही प्लेस पे जमा हो जाते हैं और इतने सारे अंडे ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं और इसे आरीपाड़ा बोलते हैं, जो स्पेनिश में अराइवल कहा जाता है इसे। और ये हर साल तक नियरली ये सब चीज़ें होती रहती है। जैसे इन लोगों का मतलब ये 10,000 के से ज़्यादा अंडे ये डालने के बाद, अपना काम हो जाने के बाद, ये फीमेल कछुए जो रहते हैं ये फिर से पानी की दिशा में मतलब सी में चले जाते हैं। ये अपना ट्रैवल जो है ये करने के लिए चले जाते हैं। अंडों को ज़मीन के अंदर ब्लैक जो मतलब ज़मीन में पूरा वहाँ पे अंदर है ना, 2 फीट नीचे है तो वहाँ पे आराम से चले जाते हैं और फिर आशा करते हैं कि जितने भी अंडे डाले हैं वो बाहर जब निकलेंगे तो इनके साथ फिर से मिक्स हो जाएंगे। ये जो कछुए होते हैं सी टर्टल्स, ये एक मैजिकल एनिमल्स है। ये इनकी लाइफ जो है ये हमें पता ही नहीं है ये कैसे जी रहे हैं, लेकिन इनकी लाइफ को ना हम ह्यूमन जो है ये बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है। अब हम इन्हें कैसे तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं तो वो भी बता देते हैं। ये अंडे यहाँ पे ज़मीन में गाड़ के चले जाते हैं। ओके, न्यूली जो बच्चे हैं जो बाहर निकल के आ जाएंगे, वो आने के बाद वो फिर से यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ समंदर में मिल जाएंगे और समंदर में इतने घुल मिल जाते हैं और एक एक मतलब इनको बहुत टाइम लग जाता है ट्रैवलिंग करते हैं। ये ट्रैवलिंग कहाँ से कहाँ तक पर करते हैं पता है? पैसिफिक नहीं तो अटलांटिक जो ओशन रहता है उसमें करते हैं। बहुत दूर दूर तक पूरा घूम घाम के चले आते हैं ये। एक कछुआ जो है ये जवान होने के लिए 10-15 नहीं तो कभी कभी
50 साल भी लगा देता है। उसके बाद में आपको एक और अजीब चीज़ें इन कछुए के बारे में बताती हूँ कि फीमेल कछुआ जहाँ पे जन्म लेता है वहीं पे जाके अपने अंडे डालता है। हाँ हाँ, जिस जगह पे उसने जन्म लिया है, मतलब उसने अपना अंडा फोड़ के वो बाहर निकला है, उसी जगह पे वो अपना बेबी मतलब अंडे डालती है। ये हैरानी वाली बात है ना। लेकिन ये सालों से चले आ रहा है। बट अब क्या है, इस चीज़ को शायद से हम ह्यूमंस लोग हैं ना, हम इसे डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। इतनी सारी पॉल्यूशंस करके रखी है हम लोगों ने कि इसके कारण ये बेचारे अंडे देने के काबिल ही नहीं रहते हैं। ये जो समुंदर के किनारे पे बड़े बड़े होटल्स है, मॉल्स है, ये बड़े बड़े चीज़ें पोर्ट्स है, ये बना के रखे, इनके जो इलेक्ट्रिक लाइट्स है, इनके कारण टर्टल को समझ में ही नहीं आता है कि कैसे मून लाइट जब होती है तभी वो आके अंडे डालते हैं ना। और ये जो जाला है फिशिंग करने का, इसमें तो हज़ारों कछुए अटक के मर जाते हैं बेचारे। आप देख सकते हैं अभी भी एक कछुआ इस जाली में फंसकर अटक गया है और अटकने के बाद ये बुरी तरीके से मर गया। उसके गले के आजू बाजू में पूरी नेड फंस गई है और वो मर गया है। तो यहाँ पे तो एक ही दिखाया गया है, लेकिन एक पूरा अगर साल हम काउंट करेंगे तो नियरली उड़ीसा में अगर आप जाके देखोगे तो एक ईयर में 1000 से भी ज़्यादा ऑलिवर रिडले जो टाइप की जो टर्टल है वो मारी जाती है। और इससे क्या होता है कि हमारी जो समंदरी लाइफ है, जिसे हम सागरी ये कहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रही है, वो नष्ट हो रही है। समुद्र की जो गहराई है उनकी वो ख़त्म हो रही है। इससे तो फिशिंग के लिए भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि फ़िश भी इसी समंदर के एक हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि इसको बचाने के लिए अभी कुछ ऐसी एजेंसीज़ निकली है जो बहुत सारा काम कर रही है। अब देखिए, हम जब चेन्नई में मून लाइट नाइट के टाइम में जब मैं कुछ बच्चों को वहाँ पे लेके गया था, तो हमने एक कछुए को देखा था जो एक मतलब वहाँ पे जो ग्रुप था उन्होंने उसे बचाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंजर्व मतलब बचाना, उसको काम करना। तो फीमेल स्टर्सर हमेशा की तरह कछुए आए, हमेशा की तरह नियरली 2 फीट ज़मीन को, सैंड को उन्होंने अपने जो विंग्स है उसकी मदद से उन्होंने खोद दिया है और 100 से लेके 150 तक अंडे वहाँ पे डाल दिए हैं, जो 2 महीने के बाद फूट के निकलते हैं और उसमें से छोटा सा कछुआ निकलता है और रात के अंधेरे में ही वो फिर से समंदर की दिशा में चला जाता है 2 महीने के बाद, जब वो अंडा फूटता है तब। तो ये है कछुआ की लाइफ। कछुआ कैसे जन्म लेता है, हैरान करने देने वाली उसकी अजूबे, ये सब चीज़ें जो है ना, ये मून लाइट जो रहता है उसका जो रिफ्लेक्शन रहता है, स्टार लाइट जो रहते हैं, इसी टाइम में होता है। तो आप जान सकते हैं कि मून लाइट, स्टार लाइट इन कछुओं के लिए कितना आवश्यक है। लेकिन अगर आप 20-25 साल बाद जब देखोगी तो इसमें से कुछ बच्चे वहाँ पे जाते हुए दिखे भी हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे कछुए जवान हो जाते हैं। और मैंने जो ग्रुप को यहाँ पे अंडे डालने के लिए आके देखा था, वो ग्रुप अभी भी ज़िंदा है। क्यों? क्योंकि उनके आजू बाजू में उन्हें हिफाजत करने वाले जो लोग हैं, वो संरक्षण करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, एजेंसीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन है। और मुझे हैरानी होती है कि आजकल समंदर के जो क्रिएचर्स हैं, जीव है, उनको बचाने के लिए पूरी इंडिया में ज़ोरों शोरों से काम चालू है। लेकिन इस समुंदर लाइफ को ख़त्म करने के लिए भी उतने ही ज़ोरों शोरों से और कुछ पोर्ट्स उड़ीसा में बनाए जा रहे हैं। नए पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं उड़ीसा में, जिसके कारण ये
जो समुद्री जीव है ये बहुत नष्ट होने वाले हैं। और ये नष्ट होने के कारण क्या होगा, समुद्र की जो गहराई है, समुद्र का जो सौंदर्य है वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। तो अब ये कैसे होगा, ऐसी कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ऐसी क्या क्या चीज़ें उड़ीसा में हो रही है। तो भैया आप देख सकते हैं अब यहाँ पे ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, बराबर है। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण समुंदर के अंदर ये कोस्टल डेवलपमेंट है। कोस्टल डेवलपमेंट के कारण भी आप देख सकते हैं कि फिश है, उसके अंदर जो वनस्पति है उसमें इतना पोल्यूशन अटक जाता है कि उसके कारण फिश तो बहुत कम हो जाते हैं। उसके साथ ही छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, टर्टल्स, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमें पता भी नहीं है समुंदर के अंदर रहते हैं, वो मारे जाते हैं। और धीरे धीरे टर्टल भी ऐसे ही हो जाएगा। वो इतना सारा पोल्यूशन रहता है, इतनी सारी उनकी चीज़ें कि ये जो जीव है ये सह नहीं पाएंगे, ये मर जाएंगे। और उसके कारण जो समुद्री लाइफ है, समंदर के ऊपर जीने वाले जो लोग हैं जिनका धंधा ही है कि समंदर की जीवों को मारो और खाओ, उनकी बेचारों की बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ये सारी डेवलपमेंट जो है ना, यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो समंदर से कुछ चीज़ें निकाल के बेच के खाते हैं, उनके ऊपर बहुत अफेक्ट करने वाली है। बाहर से आए हुए लोगों को इससे यहाँ पे नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ के लोकल बेचारे थक जाएंगे। लेकिन उड़ीसा में जो कंजर्वेशन साइट बनाई गई है, ओलिवर रिडले देख सकते हैं आप, ये यहाँ की और यहाँ के कीड़ों की जो समुद्री जीव है, इन्हें बचाने के लिए जो भी काम कर रहे हैं ना, रियली इनको सैल्यूट करता हूँ कि इन्होंने जो आने वाली, मतलब ये 25 इयर्स पहले बनाई गई है। राशिकुलिया बता सकते हैं आप, इसे बोल सकते हैं। ये इस जगह पे है ये जो कंजर्वेशन है वो। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्टल्स आते हैं हमेशा की तरह अपने अंडे डालने के लिए, और ये इन्हें सेफ लगता है। और यही से हज़ारों टर्टल्स बनेंगे और इन्हें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करती है और नहीं करेगी। इसके लिए ये काम करेंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। और यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें, मतलब एक्चुअली अफेक्ट तो होता ही है, क्लाइमेट भी प्रॉब्लम है, कोस्टल जो है वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जीव तो जीव है भाई, वो तो जी लेते हैं, कर लेते हैं, कुछ सर्वाइव कर रहे हैं कुछ। लेकिन हम लोगों ने, हमारे ऊपर ही ये डिपेंडेंट है कि हम इन्हें कैसे करेंगे। तो आप जब भी सीखे, मतलब समंदर में जाएंगे तो वहाँ पे बचाने के लिए जो भी करोगे वो बहुत फ़ायदे से होगा। तो अगर आप रहते हैं ऐसे कोई जगह पे, तो प्लीज़ टर्टल्स को देखिए, उनके नेक्स्ट को देखिए, बीचेस पे जाइए, कैसी ज़िंदगी होती है उनकी वो देखिए। और अगर फिर भी आपको बहुत ही इच्छा है तो आप उड़ीसा में ओलिवर रिडले कंजर्वेशन साइट जो है वहाँ पे जाके भी आप एक बार देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी इस वीडियो में आपको बताई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, वीडियो देखा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत आभारी हूँ।